Trinity B1 ISC1 4 Skills Test. CELT Secure English Language Tests. B1 English Test ISC1 Skilled Worker, Health and Care Worker, Scale-Up Worker, Student Visas. Yeah, nice. Yeah. But I can't read it. It's Can you very check blur. this one? So firstly, I want to describe some problem, the river pollution in the town or city. The river, the people putting the rubbish, the many causes create the health problem. We should take action and stop the pollution. Secondly, the people putting the rubbish in the river, they cause the pollution, waste from factory, oxygen, fish number down, water, birds, rubbish. Can I stop the pollution? But I follow the some rules. The student pick up the rubbish and several local companies got together to clear the river of bridge. Let's stop have time of work so well done to them. And the thirdly, my suggestion, the people can encourage to look after their local level better. So first we take the action on this situation. It is not better than putting the rubbish in the river. Okay, let me read it. You've written here. I want to describe the problems from river pollution in a town or city. The river, the people putting the rubbish, the smell caused to create health problems. Don't write this much rubbish. Okay? जो जरूरी चीज है वो लिखें. आप ऐसे ये बार बार जुमले को रिपीट करेंगे ना तो ये गलत हो जाएगा. क्योंकि थोड़े वर्ड्स हैं, इंफॉर्मेशन दें उसको. ऐसे कुछ भी वेस्ट ना करें मतलब वर्ड्स. जस्ट मीन जब यहाँ पे लिखा है कि एक दफा मतलब लिख आई दिया है कि आई वांट टू डिस्क्राइब सम प्रॉब्लम्स बाय द रिवर पोल्यूशन इन अ टाउन और सिटी. सब जब यहाँ पे लिख दिया है कि ये एक चीज है तो उसके आगे लिखो हेल्थ प्रॉब्लम्स, प्लास्टिक बॉटल्स एंड बैग्स, कॉमा. उसने पूछा है प्रॉब्लम्स क्या होते हैं. Decrease in number of fish, decrease in words, decrease in oxygen level of the water, increased pollution in the rivers, increased chemicals in the farms. okay, I just writing the it's mean the Yeah? main points. Yeah. What is this? This is not good. Because they have first asked you what are the problems caused, and you have written putting the rubbish, the smell causes create the health problems. We should take action. This is not about we, okay? This is not creative writing. This is multi-text writing, looking at the text and describing. No understanding? Okay. Yeah. I'm just writing the main I'll write point. it for you once, don't worry. Okay, the people putting the rubbish in the river, they cause the pollution based from factory, oxygen. No, 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 no. Second वाले question में वो कह रहा है कि उस pollution को कैसे रोकना है, उसको control कैसे करना है. ठीक है, वो ये नहीं आपको कह रहा कि आप कुछ भी बता दो, आपने सवाल को समझ के जवाब दो. Okay. And the thirdly, मेन लाइक दिस आइडिया इज ओके. ये जो आइडिया दिया है आपने, तो उसको पता है कैसे लिखना चाहिए था. ये तो आना ही नहीं है ना इसमें, क्योंकि ये प्रॉब्लम्स नहीं है. अगर आप लिख दे तो आपको ये लिखना होना चाहिए था, सिर्फ लिखना था पिकअप द रबिश. ठीक है, ये एक एक्शन है दैट यू कैन टेक. उसके बाद और तो कुछ भी नहीं लिखा. प्लांटिंग ट्रीज भी नहीं लिखा इसमें. ये नहीं सही लिखा आपने. okay. ओके, इसके अलावा ये भी suggestion people could be encouraged
to look after the river better. First, take action. देखिए आपने सारा ही नहीं सही लिखा। देखो अब उर्दू में समझाऊं अगर समझ आ जाए तो। हाँ, कैन यू हियर मी? यस, you can have it. उर्दू में समझा दूं एक दफा अगर समझ आ जाए तो। अब नहीं, मुझे समझ आते लेकिन अब मुझे एक मतलब वो दूसरा दिखा दे ताकि मैं उस समझ सकता देखो हूँ। आपने किसी भी सवाल को नहीं समझा, ठीक है। आपने पहले नंबर पे ये नहीं समझा कि पहले सवाल का मतलब है फर्स्टली आई वांट टू डिस्क्राइब सम प्रॉब्लम्स कॉज्ड बाय रिवर पोल्यूशन इन द टाउन और सिटी। पहले मैं बताना चाहता हूँ कि सिटी में क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, उसको थोड़े थोड़े जवाब दो। उसको अगर आप जवाब दोगे तो पास होगे ना, जवाब दे नहीं रहे आप, फिर ये लिख रहे हो मैं सेब खाता हूँ, सेब को मैं ही खाता हूँ और खाया मैंने सेब। बात तो आप वही करो, उसको बताओ तो सही, कुछ अंदर कोई बात तो लिखो। आप उसको पैराफ्रेज करके कभी इस तरफ से कभी उस तरफ से, नहीं समझ आया आपको? सेब आपने खाया, ठीक है, आपने सेब खा लिया, सेब मैं खा चुका हूं, बात तो वही है ना। अगर आप अपनी खोल के देखो आप वही उसमें बार बार रिपीट कर रहे हो, आंसर तो दिया ही नहीं ओके। सवाल का। समझ आ रहा है आपको? ओके, आ रहा है अभी। देखो सवाल इंशा जो उसने पूछा है उसका आप जवाब दे दोगे तो पास हो जाओगे आप। अब उसमें मतलब उसने तीसरा सवाल पूछा कि मैं लोगों को कैसे इनकरेज किया जा सकता है कि वो लोकल रिवर पे आए, तो उन्होंने खुद ही बताया हुआ है कि अगर वाटर स्पोर्ट्स सेंटर वहां पे बन जाता है या वाटर साइड कैफेज बन जाते हैं या ज्यादा बेहतर लाइट या सिक्योरिटी कैमरास लग जाते हैं तो लोग वहां पे जाएंगे। और वो रिसाइकल करने पे अगर लोगों को एजुकेशन मिल जाती है कि रिसाइकल करें तो तब भी अच्छा हो जाएगा। वो लोग इधर उधर रबिश नहीं फेंकेंगे। अब आपने कुछ भी नहीं लिखा उसमें अपने पैराग्राफ में। आपको समझ आ रही आप है मैं क्या कह रही हूँ? यस मैम। ने आपसे पूछा है स्टेप्स दैट कैन बी टेकन। स्टेप्स का मतलब है क्या एक्शन लिया जा सकता है, क्या किया जा सकता है पोल्यूशन को कम करने के लिए, ठीक है। तो उसमें बताना था कि ट्रीज लगा सकते हैं, पिक अप रबिश, यू नो, ट्राई टू रिसाइकल इट, ऊपर ही लिखा हुआ है वहां से। समझ में आया? आपने एक्चुअली उसके सवालों ओके। का जवाब नहीं दिया तो वो तो फेल कर देगा ना फिर एग्जामिनर। समझ आ रहा है आपको? ओके। यस। अगर देख के भी लिखना है तो सही लिखना है, देख के ऐसे नहीं कर सकते। ओके, सो मतलब जो उन्होंने क्वेश्चन दिया होता है तो ओ टिक्स A B C इसमें देखो और मेन मेन पॉइंट लिखो। पढ़ो समझो क्या पूछा है फिर लिखो, ऐसे थोड़ी है कि कुछ भी लिख सकते हैं। ओके। कुछ समझ आ रही है कि नहीं? यस, अभी समझ आ गया है। अभी अब दूसरी बार जब लिखूंगा तो चलो अभी अभी हम्म, लिखो, ये एक पेपर सेंड कर रही हूँ उसमें से मुझे अभी लिख के दिखाओ। आसान वाला देती हूँ पहले वो करो, अभी करके भेजो मुझे। आप अभी मैं मतलब मैं करता हूँ ना इसके मतलब वो क्या है। एक सबसे आप वो आसान ये देने क्वेश्चन लगी हूँ देख ये वाला। जो और जो ट्रेन क्या है। हाँ ये ट्रेन वाला ही है। नहीं नहीं। हाँ ये ट्रेन ही है, द अंडरग्राउंड ट्रेन। आंसर्स यस, बोलो। इसका क्या है ये फिलिंग द ब्लैंक्स जो है ना 11 to 15। सो द फर्स्ट मैंने लेंगे इलेक्ट्रिक करेक्ट। एंड सेकंड लिखा है फायर एंड वाटर करेक्ट। एंड थर्ड लिखा है टनल करेक्ट। एंड द फोर्थ लिखा है डार्क।
क्या लिखा है? मैंने मैंने डार्क लिखा है। ख्याल में नहीं, ये thousands द of people ओल्ड use the लंदन London अंडरग्राउंड। Underground on first day. पहले दिन पे उन्होंने यूज किया था लंदन अंडरग्राउंड, फर्स्ट डे पे। नो, जिस द Putin one. The old London underground use dash lights, गैस लाइट्स। gas lights. हाँ, ऊपर लिखा भी हुआ है। It was made up of wood and used gas lights, lighted with gas. Light with gas. Yeah. And the fire is cheap. Thing is the wrong. हाँ, लास्ट 15th क्या, चीप टिकट्स। Cheap, yeah. क्या लिखा है आपने? मैंने cheap लिखा है। तो टिकट्स भी लिखना था। कितने मार्क्स हो गए आपके? ये मतलब cheap गलत है। चीप गलत। चीप टिकट्स होता तो सही हो जाता। तो इसमें क्या आता है? चीप टिकट्स आना है ना आंसर। cheap टिकट, मतलब टिकट इसके साथ लिखूं तो फिर सही आएगा। हाँ, टिकट्स लिखना सही से। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना लास्ट पैराग्राफ में कि majority of the tickets, this means almost 70% of the tickets sold were these cheap tickets for ordinary working people now। तो मतलब वो कौन सी टिकट्स थी? sold भी लिखा हुआ है, were भी लिखा हुआ है, तो these भी लिखा हुआ है, cheap tickets लिखना था और exactly अच्छा, same देख के लिखना था। वो टिकट लिख उसने वो टिकट लिखा था तो मैंने इसलिए सिर्फ जस्ट चीप लिखा। कहाँ तो लिखा है चीप टिकट टिकट्स? था। नहीं लिखा हुआ। अगर कोई नहीं लिखा हुआ यहाँ पे तो। अगर मतलब देखो, अगर लिखा हुआ होता अगर तो नहीं मतलब लिखना था, अभी लिखा नहीं है तो लिखना है। मतलब अगर मैंने फॉर एग्जांपल ये चीप टिकट आता है इधर, ठीक है मैम। अगर मैंने सिर्फ चीप लिख दिया और टिकट को छोड़ा तो फिर ये गलत होगा। नहीं, गलत नहीं होगा, फिर भी सही होगा क्योंकि मेन वर्ड तो लिखा है ना, फिर भी सही हो जाएगा। तो इधर सही होगा ये। फोर फोर, तो फोर ठीक है ना। फोर, ये फोर फोर बैलेंस गुड। ठीक है। आगे 6 to 10। 6 to 10, या इधर लिखा है ए। ठीक है। सी लिखा है। ए, सी। डी, ए लिखा है, सी लिखा है और और फिर डी। डी लिखा है, ई लिखा है और एफ लिखा है। जी, जी भी आता है नहीं, जी नहीं, 5 हो गए हैं ना पूरे। फॉल्स। अब मैं बताती हूँ कौन से। अब बी फॉल्स है, डी भी बी फॉल्स तो है क्योंकि मैंने द नहीं लिया। फर्स्ट अंडरग्राउंड ट्रेन्स वर बिल्ट इन लंदन, नॉट इन पेरिस। और दूसरा एच फॉल्स है, बाकी डन सारे डन। ट्रू हैं। और दूसरा एच तो एच तो ट्रू फॉल्स है। है ही। वो तो कह रहे हैं अभी भी मेरा सिर्फ, प्राइसेस सेम ही है, बट इन रियल द प्राइसेस हैव गॉन अप। तो मेरा कितना होगा? ये ए सी डी ई एफ, इसमें सिर्फ डी गलत है। जी, 4 मार्क्स। ओके, सो एक गलत हो गया। 1 4। ओके, 1 to 5। 1 to 5 लिखा है एफ। पैराग्राफ 1 में एफ लिखा है। ओके, पैराग्राफ करेक्ट। एंड 2 में ए लिखा है। 2 में ए लिखा है। एंड 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 2 में ए लिखा है। एंड
एंड ठीक है सी ये भी। में, ट्री में सी लिखा। हम्म। मैंने सी लिखा है, ई है मेरा ख्याल में, सी है इधर, मैं कंफ्यूज हूँ। ये सी लिखा है ट्री में। नहीं, C3 का नहीं है, सी एक्चुअली आई थिंक पैराग्राफ 4 का है, क्योंकि लोग people felt scared, people were afraid, they were scared of getting into the trains. I think paragraph 4 talks about the feelings of people. Paragraph 3 talks about what the first underground system was like. वो कैसा था, वुड का बना हुआ था, गैस लाइट्स लगी हुई थी, स्मोकी था, कैसा था, वो ये लिखा है डी में। तो डी, तो मैं 4 में डी लिखा हूँ। डी इसमें आएगा ना 3 में, एंड फिफ्थ का आंसर है बी। बी, या मैंने बी लिखा है। 5 में बी लिखा है, 1 में एफ लिखा है, 2 में ए लिखा है, 3 में सी लिखा है, 4 में डी लिखा है, 5 में बी लिखा है। वो थोड़ा सा उल्टा हो गया आपका। ये सी डी जो है 3 में आता है, सी जो 4 में आता हाँ, है, तो इधर। C4 में इस गलत लिखा है ना, जो रियल है वो डी। डी जो है वो थर्ड का आंसर है। तो मैंने 4 में लिखा है, और सी जो है गलत वो हो गया। 3 में। तो ये 3 पे ठीक हो गया। तो इस पे और पास है या नहीं? आगे बी भी किया है, तो मल्टी टेक्स्ट रीडिंग की है, मतलब ये वाला किया है, कौन से? ये विच पैराग्राफ ये मेक्स वाला तो नेगेटिव नहीं किया कमेंट्स है। अबाउट। हाँ, ये तो नहीं किया, ये तो मैंने ये तो करना था ना ये। ए बी सी, ये तो मैंने तो अभी ये देखा, रीड क्वेश्चन। अच्छा, ये पूरा करो अभी, और साथ में ना ये वाला टास्क भी करके दिखा देना, इसमें खुद से लिखना है। इस पे ये चीज पे फोकस नहीं करना कि कॉलेज वेबसाइट नहीं, उस पे लिखना है फर्स्टली आई वांट टू डिस्क्राइब डिफरेंट वेज ऑफ लर्निंग अ लैंग्वेज। क्या है डिफरेंट वेज? लिसनिंग टू म्यूजिक, watching films, taking online class, you know, chatting in English, also going abroad, talking to native speakers, ऐसे ही है, रीडिंग बुक्स, ये सारे वेज हैं। वेज मीन्स मेथड्स ऑफ लर्निंग अ लैंग्वेज। ठीक है, इसके बाद लिखना है सेकेंडली आई वांट टू से व्हाई लर्निंग अ लैंग्वेज इज इम्पोर्टेंट। इसलिए इम्पोर्टेंट है फॉर बिजनेस, इट इज इम्पोर्टेंट फॉर The इमिग्रेशन, visit in the other country, and हाँ, this to is move very to another important. country, it is important to travel, for tourism, you know. Learning a foreign language is also important for getting a better job. तो इधर मतलब वो नहीं दिया ना, टिक्स ए बी सी, और ये दूसरे में खुद से अक्सर दे। लिखना है। मतलब एक लेटर होता है, एक राइटिंग होता है, ये किस तरह? कुछ भी हो, आपने बस बुलेट पॉइंट का जवाब देना है बस। आपको ये ओके, पता होना चाहिए कि नहीं, मैंने इस सवाल का जवाब दिया है, इस सवाल का जवाब दिया है। ठीक है, ये पूरा पेपर आपने सेंड किया है, मतलब ये जो क्या समझ नहीं आया दूसरे में मुझे। अक्सर होते हैं ना, क्या मतलब मतलब? एक ऐसे होते हैं, एक ऐसे नहीं, होते हैं, इसमें एक ऐसा लेटर कुछ होते भी हैं। नहीं है, आपने सिर्फ बुलेट पॉइंट्स के जवाब देने हैं ऑर्गेनाइज करके बस। इसमें सिर्फ ये ऐसे 100, मतलब ये राइटिंग, ओके, जस्ट राइटिंग है इसमें। मतलब ये लोग दिए होते हैं, मतलब इधर हम पॉइंट लिखेंगे, मेन पॉइंट। हाँ, ये तो प्लानिंग नोट्स है ना, इसमें पेपर पे आपने जो लिखना होगा रफ वर्क यहाँ पे करना है। ठीक है, फिर रियल अपना यहाँ से शुरू करना है, ये पेपर के नीचे बनी हुई है लाइन, यहाँ पे इधर लिखना। सिर्फ ओके, या रप रप लिखना है, ठीक है। और मैम जब ये क्या है, लिसनिंग में मतलब एक्स्ट्रा नोट देते हैं ये लोग, ताकि हम फिर रप नोट जो होते हैं ना, नहीं अलग नहीं, सा जो कुछ दूसरा। करना है पेपर के ऊपर ही करना है, अलग से कुछ नहीं। दूसरे
जो आइलेट्स या वगैरह इसमें तो मतलब वो एक्स्ट्रा देते हैं ताकि इधर लेके फिर नहीं, वो उसके दूसरा ऊपर उससे बोला सही जो कुछ जो। करना है, हाइलाइटर देते हैं, पेन देते हैं, उसको कहते हैं इसी के ऊपर करो जो कुछ करना ओके। है। ठीक है, ओके। चलो अब ये कर लो। द टाइम इज अप नाउ। आई विल और स्पीक टू यू होपफुली टुमारो।